Hello students, due to lockdown we started your mathematics class as e-education. Here is the first lesson, rational number. All you know in class 7th what is the definition of rational number. We can repeat here. Rational number, here you can see a number that can be expressed as p by q form and q is not equal to 0 is called a rational number. Here p and q both is an integer, positive or negative. Integer number means all counting numbers like 0, 1, 2, 3 and -1, -2, -3, all counting number are in positive form or in negative form we called integers. So a rational number p by q form, then we write here 3 by 4 or -3 by 4, or we say here 1 by 4. But 3 by 0 is not a rational number because in definition q is not equal to 0. So here in next topic, there are rational number are two types, positive and negative. Positive rational number, both sign are positive. In rational number 3 by 4, here is 3 is a positive and 4 is also positive, so we called 3 by 4 is positive number. And -3 upon 4, in -3 upon 4 both are in minus form, so we can say 3 by 4 is also a positive number. Equivalent rational number, if we multiply or divide in any fraction with a same number in its numerator and denominator, we find equivalent rational number. As example, if we write here 6 by 10 and divide by 2 in both numerator and denominator, we find here 3 by 5. 3 by 5 is equivalent to the 6 by 10, and if we multiply by 2 in both numerator and denominator, we find 12 upon 20. It is also called equivalent of 6 by 10. And next is a standard form. Standard form. What is the standard form of the rational number? Standard form means if a rational number cannot divide with a number, or we can say smallest form of rational number is called the standard form of the rational number, or you can also say it is not divisible. It is the lowest term. As for example 1/2 is the standard form of the rational number because we can't divide 1 by 2 with the same number. And last point is number line. Number line, here is the A, here is the B. In middle we put 0. In right hand side we write positive number, and the left hand side we write negative number. Is it clear? Now comes on lesson self practice 1. Self practice 1. Open your book. Self practice 1. Open book. First question is write 4 rational number equivalent to each of the following rational number. Equivalent मैंने बताया आपको, किसी भी एक नंबर से अगर हम किसी भी रेजनल नंबर में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रीजनल नंबर प्राप्त होता है, उसका इक्विवेलेंट 2/9 है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 4/18, 2/9 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/27, 2/9 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/36 और 2/9 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं 10/45। ये 4/18, 6/27, 8/36, 10/45 ये सभी आपका 2/9 का क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। ऐसे ही आप इसका BCD आप HW में BCD को करेंगे फेयर पे। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हियर इज 15/20, 15/20 लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका स्मॉलेस्ट फाइंड करने का एक सिंपल वे है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम HCF निकाल लें। 15 और 20 का हम जब HCF निकालेंगे तो क्या आता है 5, यानी कि ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो सकता है। सो वी डिवाइड 15 डिवाइड बाई 5 एंड 20 डिवाइड बाई 5, देन वी गॉट 3/4। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को 3 टाइम में और 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 टाइम में, तो देन 3/4 is the standard form of the 15/20. Now you solve remaining 4 questions. Third number question is write the absolute value. What the means of absolute value? In the case of absolute value, we find always a positive number. If given negative number, then also value of negative number is get positive. In 17/24 we get here absolute value 17/24. This is -6/35. Then we find here 6/35. No change in number, only change in sign. माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ में है आपका दिया हुआ है, फिगर दिया है, आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पे देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको। यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजिंग द नंबर लाइन सोन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग ग्रेटर और स्मॉलर। इन द केस ऑफ राइट हैंड साइड, अगर कोई नंबर किसी नंबर के राइट हैंड साइड में है, चाहे वो माइनस हो या फिर वो प्लस हो, तो वो बड़ा होगा तुलना में लेफ्ट हैंड साइड के। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर 5 है तो 5 के राइट हैंड साइड पे 4 है तो 4 क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। अगर यहाँ 0 है, 0 के राइट हैंड साइड 1 है तो 0 से ये 1 बड़ा होगा, और 0 है लेफ्ट हैंड साइड -1 है तो ये -1 छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। वैसे तो हम जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर एंड 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, बट इन द नंबर लाइन यू कैन से इजिली राइट हैंड साइड का नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -1 और यहाँ पर -1/2, तो ये देखना है कि -1 के लेफ्ट है या राइट है। पहले वाले नंबर को देखते हैं, तो ये -1 है और यहाँ -1/2, तो राइट में -1/2 है, 1 कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, यानी कि 1 स्मॉलर होगा। तो देन वी से राइट हियर -1 इज लेस देन -1/2, ठीक है। अब यहाँ 1 और -2 दिया हुआ है, तो 1 आपका यहाँ स्थित है, देख लीजिए, सिचुएटेड 1 हियर एंड -2 इज लेफ्ट ऑन 1, तो लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा, -1 आपको राइट साइड में है तो -1 आपको राइट हैंड साइड में है, तो लिखेंगे 1 ग्रेटर देन -2। तो जो भी राइट में होगा पहला अक्षर आप देखेंगे, जिधर राइट में होगा उधर आप ग्रेटर का साइन लगा देंगे, जो भी अक्षर राइट साइड में होगा उधर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। इसको आप कंप्लीट करके ले आएंगे, कंप्लीट करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब कह रहा है कि विच पेयर ऑफ रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट 15/19 एंड -15/-19। अब इक्विवेलेंट करने की दशा में, इक्विवेलेंट हम जानते हैं कि जब दोनों नंबर बराबर होगा तो इक्विवेलेंट होगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकालने के बाद ग्रेटर जो आपका न्यूमरेटर होगा वही आपका
ग्रेटर होगा, अगर दोनों इक्वल आता है तो फिर इक्वल होगा, और या फिर क्रॉस मल्टीपल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। हियर a मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई बी। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो आपका क्या होता है, फ्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। कट करके भी, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दोनों को करके हम पता कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो सबसे पहले हम माइनस और प्लस में देख लेते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई निगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर है और निगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये मान के चलिए कि निगेटिव हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों साइन लगा है माइनस में। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सेम साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो पॉजिटिव होगा। तो आपका ये 15/19 ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये इक्विवेलेंट हैं। और यहाँ पूछ रहा है कौन कौन से इक्विवेलेंट नहीं हैं, तो आप पहले को क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट पेयर। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट पेयर। यहाँ पे आपका हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, मैं और समझा देता हूँ आपको। 28/-49 है और -4/7 है। आप बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लें। 28 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया, a मल्टीप्लाई बाई डी हो गया, और यहाँ पर -49 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं माइनस का, तो यहाँ पर 196 आ गया, और यहाँ 36 और ये 196 माइनस प्लस दोनों बराबर आता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह जो नहीं बराबर आएगा उसको हम जो है नॉट इक्विवेलेंट पेयर लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन में कंपेयरिंग करनी है, कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। आपको भरना है, ट्रू स्टेटमेंट बनाना है कि ग्रेटर और स्मॉलर के साइन को भरना है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन -8/15 है और यहाँ पे -7/30 है। इसको कंपेयर करने के लिए कौन सा बड़ा है, यही आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कठिनाई ये है कि सबसे पहले आपको a और d ही मल्टीप्लाई करना होगा, फिर b और c मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ad बड़ा आता है तो पहला रेशनल नंबर बड़ा होता है, और अगर cb बड़ा आता है तो ये बड़ा होता है। लेकिन उससे अच्छा है आप दोनों का सेम डिनोमिनेटर कर दें, यानी कि एलसीएम निकाल लीजिए आप 15 और 30 का। तो एलसीएम 15 30 का 30 आता है। अब यहाँ लिखेंगे डू द सेम डिनोमिनेटर, डू द सेम डिनोमिनेटर। आपका आएगा -18/15 और 30 बराबर करना है, 30 15 से 2 टाइम में जाएगा, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, -16/30 हो गया, और -7/30 है, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल है तो नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर -16 और -7, आप जानते हैं माइनस जब है दोनों माइनस में जो स्मॉलर माइनस साइन होता है वो हमेशा ग्रेटर नंबर होता है, यानी कि -7/30 ग्रेटर है और -16/30 स्मॉलर है। तो पहला जो है आपका स्मॉलर है तो यहाँ पर स्मॉलर का साइन लग जाएगा। इसी प्रकार से आप 7वां क्वेश्चन कंप्लीट करके बैठेंगे। 8वां में है अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें कह रहा है इट इज इजियर टू डू सो बाय कन्वर्टिंग टू डेसिमल्स। डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइंड करना है। अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको फ्रैक्शन उसमें क्या कहते हैं, सेम डिनोमिनेटर करके भी इसको जो है आप कर सकते हैं। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इसको डेसिमल में करके करें तो आप डेसिमल में ही करके करेंगे। -1/4 पॉइंट माइनस का डिवाइड करना है इसमें, और कुछ करना नहीं है। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे पॉइंट लगेगा 0, 4 2 जा 8, बचा यहाँ 2, 4 5 जा 20। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -0.25, यहाँ आएगा 0.5, आप डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ आएगा 0.875, यहाँ आएगा 0.925, और यहाँ आएगा माइनस का 0.2 और
2 और 5। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय सबसे छोटा पहले देखते हैं, सबसे छोटा निगेटिव में ही होता है, तो पॉइंट के बाद पहला अक्षर देखते हैं, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो ये सबसे छोटा होता है -0.225, ये सबसे छोटा हो गया, साइन लगाएंगे स्मॉल का, उसके बाद यहाँ माइनस, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा अंक ये है ना, -0.25 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद -0.225, फिर उसके बाद उससे छोटा है 0.5, फिर उससे छोटा है 0.875, फिर उससे बड़ा है 0.925। स्मॉलेस्ट से ग्रेटर लिखना है तो सबसे छोटा माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, उसको लिखा, उसके बाद जो माइनस का छोटा होता है वो बड़ा हो गया, उसके बाद सबसे छोटा पॉजिटिव में ये है यानी निगेटिव से बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। अब इसको इसका फ्रैक्शन चेंज करते हैं, 25 आया है -1/4 का, 225 आया है -9/40 का, 0.5 आया है 1/2 का, साइन लगाते चलेंगे, 0.875 आया है 7/8 का, और 0.925 आया है 15/16 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप 8वां और 9वां दो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1A आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B लेके आएंगे हम। तब तक जब तक 1B हम पोस्ट करते हैं, आप लोग 1A अपनी कॉपी पे कंप्लीट करने के बाद उस कॉपी का फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे मेरे मोबाइल नंबर 9451860330 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप नोट कर ले फिर से एक बार, 9451860330 पे 1A सॉल्व करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देख के जो भी कमियां होंगी हम आपको कॉल करके करेक्ट करा देंगे। 1B के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें, जल्द से जल्द अगला वीडियो जाएगा। थैंक यू।